وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قریشی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ قریشی صاحب، اعلامیہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، ہمارے حساس اداروں نے، سیکیورٹی ایجنسی نے اس کی تحقیقات کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ابھی حکومت برسر اقتدار ہے اس نے آپ کا پانسا پلٹنے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا، یہ اعلامیہ کہہ رہا ہے۔ تو اس اعلامیے کی نفی کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے، یہ جو آج اجلاس بلایا گیا ہے، اس اجلاس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موجودہ حکومت جو کہ مسلط کردہ حکومت ہے، جس کی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے، وہ ان کی ایک کوشش ہے کہ بیانیہ جو لوگوں میں جو لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں اس پر پردہ ڈالے اور ایک کور اپ کی ایک کوشش دکھائی دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، 37واں اجلاس، اس کے منٹس کو ان کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے منٹ سے اتفاق کیا۔ تو اس منٹس میں تو بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ جب تک اس کا پراپر پروب نہیں ہوگا، صحیح صورتحال سامنے نہیں آئے گی۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد اور مناسب حل ایک ہی ہے، اور وہ قریشی صاحب یہ بات تو آپ کا یہ موقف تو تسلیم کیا۔ بات مکمل ہونے دینا پلیز، بات مکمل ہونے دیں۔ مناسب حل یہی ہے، ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ تشکیل دے اور وہ اس کی چھان بین کرے۔ اس کے لیے ایک مناسب ٹی او آرز بنائے جائیں۔ ہم ان ٹی او آرز کو ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کو ٹی او آرز واضح طور پر رکھنے چاہیے، اور ہماری نظر میں کچھ ایسے ٹی او آرز ہیں، اگر وہ سامنے آ جائیں تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? Number 2, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned and it links removal of Imran Khan government as a condition of forgiving Pakistan? Does it also threaten that in case Imran Khan government survives, it would result in isolation and consequences? Number 3, didn't National Security Committee declare it as interference in Pakistan's internal affairs and decided that marsh be given as in earlier recommended by the ambassador? ابھی دیکھیے، یہ سارے سوالات جو ہیں یہ بڑے موضوع ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی کمیٹی کے منٹس کو انڈورس کر دیا ہے، ان کا اعلامیہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر وہ میں قریشی صاحب اسی طرف ہی آ رہا ہوں۔ آپ کے کچھ موقف کی تائید ہوتی ہے کہ پاکستانی جو معاملات ہیں اس میں مداخلت کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اس کی تائید تو انہوں نے کی ہے، اس موقف کی تائید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس کو پھر کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، یہ اس کا صحیح جائزہ تب سامنے آئے گا جب ایک باقاعدہ تحقیق کی جائے گی۔ ایک جوڈیشل کمیشن، ایک کریڈیبل جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیق کرے گا۔ یہ کہہ دینا، منسٹر انٹیریئر کا کہہ دینا ناکافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قوم مطمئن نہیں ہوگی۔ صحیح۔ قریشی صاحب، مان لیا بیرونی مداخلت ہوئی اور اسی نتیجے میں حکومت کی تبدیلی ہو گئی، کپتان کل کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی سدھار لیں، ان کے پاس موقع ہے، تو پھر یہ غلطی کس نے کی؟ آپ کی تو حکومت امریکہ کی مداخلت پہ تبدیل ہوئی آپ ہی کے موقف کے مطابق۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو کمیشن بنے گا تو اس کے سامنے سارے حقائق آ جائیں گے، اور ہم یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ اس کمیشن کی جو ہیئرنگ ہے وہ ایک اوپن ہیئرنگ ہو جائے، اور اوپن ہیئرنگ میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، کوئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं, असद मजीद खान साहब ने खुद ये अखज़ किया था कि वो उन्हें ये लगा कि ये धमकी है, या फिर उन्होंने सिर्फ हुकूमत को ब्रीफ किया और हुकूमत ने ये अखज़ किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास में? असद मजीद खान ने, जो कि बड़े एक जिम्मेदार आदमी हैं, उस गुफ्तगू को जो उनके साथ की गई, जो कि मिनट हुई, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक साइफर टेलीग्राम भेजा और उसकी हसासियत को सामने रखते हुए उन्होंने सिफारिश की कि ये इतना हसास मसला है कि अमरीकी सफारतकार को बुलाकर डिमाश किया जाए। उनकी इस तजवीज़ पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 37वें इजलास ने उसकी तायीद की, उसको इंडोर्स किया और फिर डिमाश किया गया। सही। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोईर पीरजादा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एलामिया आप कुछ सुन चुके हैं, पिछले एलामिया की तासीक हुई है, बात ये हो रही है कि मुदाखलत हुई लेकिन हुकूमत की तब्दीली, तहरीक अदम एतमाद, इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। अब आप क्या समझते हैं कि एक पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, एक एलामिया वो था, एक एलामिया ये है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। बुनियादी तौर पर इसको समझने की हमारे लिए जरूरत है कि गुज़िश्ता कई दिनों से PMLN के अंदर और शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव है। जिस दिन से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और बहुत मुश्किल से उन्होंने कैबिनेट क्रिएट की है, तो वो बहुत इस शदीद दबाव में है। एक सेंस ऑफ लेजिटिमेसी का क्राइसिस उनके लिए खड़ा हो गया है। PMLN के अंदर जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझते हैं कि इमरान खान ने असल में उनके साथ साजिश कर दी है और उनके गिर्द इतना बड़ा एक उन पर इल्जाम लग गया है और उनके ऊपर इतना एक प्रेशर बन गया है कि उनके पास कोई लेजिटिमेसी, कबूलियत नहीं रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये एक बाहर से साजिश करके हुकूमत जो आई है, तो वो उस तासुर को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने दबाव डालकर कौमी सलामती के इदारों को दोबारा से एक लेकर आए हैं नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में, जो उनको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज अब वो अपनी सियासी जरूरत जो है शरीफ जरदारी कैबिनेट की, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और जैसा कि आपने देखा कि कौमी सलामती के इदारों ने वही चीज दोबारा दोहरा दी है कि इसमें हम इसमें लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। पहले भी जब DGISPR ने आपसे चंद दिन पहले प्रेस ब्रीफिंग की थी, प्रेस टॉक की थी, तो उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कौमी सलामती का जो एलामिया है उसके अंदर लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी साजिश नहीं है। अब ये चीज तो एक डिटर्मिनेशन करने की है। जब एक बैरूनी ताकत जो कि दुनिया की सोल सुपर पावर है, वो एक कंट्री के एम्बेसडर को बाकायदा एक डिक्टेशन देते हैं वहां पे, और उसमें 4 लोग मौजूद हैं, 3 या 4 लोग हमारी तरफ से हैं, 3 या 4 लोग उनकी तरफ से। एक मीटिंग होती है जिसमें वो कहते हैं कि भाई अगर अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है या आ रही है, और इसके बाद भी अगर इमरान खान हुकूमत चली जाती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमारे रिलेशनशिप भी ग्रो करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे और पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये हुकूमत रहती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए और भी नताइज हो सकते हैं। अब इसको आप साजिश कह दें, इसको आप मुदाखलत कह दें, इसको डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ अपनाती है, पीपल्स पार्टी भी अपनाती है कि बेशतर मौके ऐसे आते हैं कि जब आप किसी मुल्क के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ाना चाहें या आपने कोई नए मंसूबे शुरू करना चाहें, तो दूसरा जो आपका रकीब मुल्क होता है वो आप पे बात करता है। इस तरह की बातें होती हैं और ये सदियों से होती आ रही हैं, तो इसको साजिश गर्दाना जाए तो फिर ये हर महीने कोई ना कोई साजिश हो रही होगी। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, इसमें कोई जान नहीं है इस आर्गुमेंट के अंदर। देखिए, सबसे बड़ी चीज लॉजिक होती है, मंतक होती है। हम आप तो पता नहीं किस तरह से इस मुल्क में सियासत चलाते हैं। अगर कोई किसी को गोली मार दे और मर जाए, कहीं उसने गोली तो मारी थी, कत्ल नहीं किया, तो ये इस किस्म की एक सेमेंटिक्स की डिस्कशन हो रही है। ये तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो कोई भी दबाव डाला इमरान खान हुकूमत के ऊपर या पाकिस्तान की कौमी सलामती इदारों पर या फॉरेन ऑफिस पे, उसका हमारी अदम एतमाद की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये एक चीज अलग है कि ये कहते हैं PMLN-PP वाले कि हमारी अदम एतमाद की तहरीक वो एक इंडिपेंडेंट चीज चल रही थी। अमेरिका ने अगर दरमियान में दबाव डाल दिया तो वो एक अलग चीज है कि अमेरिका भी चाहता था कि हुकूमत चली जाए। दो सेपरेट चीजों को देख सकते हैं। अब ये हमारे जहन के ऊपर है, हम इसको तस्लीम ना करना चाहें, दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करना चाहें तो हमारी अपनी मर्जी है, हमारे अपने जहन और IQ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम समझते हैं कि नहीं, इनकी अदम एतमाद की तहरीक अलग थी, अमेरिका का दबाव अलग था, तो सो बिस्मिल्लाह। अगर कोई समझता है कि नहीं दोनों चीजें कनेक्टेड थी, तो सो बिस्मिल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये देखिए कि 80 की दहाई से लेके अब तक जितने भी इलेक्शन हुए, मेजर्स इलेक्शन में अमेरिका मुखालिफ कैंपेन चलती रही है, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते रहे और इसी तरीके से इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स की हिमायत हासिल की जाती रही है। आप मुस्तकबिल में मजीद कितना अरसा यही कैंपेन देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहले बात सही नहीं है आपकी, किसी ने गलत आपको आइडिया दिया है। पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ तहरीक जो है वो सिर्फ 70s में जज्बात पाए जाते थे। उसके बाद तो पाकिस्तान में एक अमेरिका की पिट्ठू हुकूमत थी जनरल ज़ियाउल हक की, जिसको कि अमेरिका लेकर आया था। PNA की मूवमेंट एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट थी। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को अमेरिका की ताईद हासिल थी।
वो अफगानिस्तान में उनकी खातर जंग लड़ते रहे। पाकिस्तान, इस्लामाबाद और पेशावर जो है वो CIA के सबसे बड़े ऑपरेशनल सेंटर थे। इसके बारे में सैकड़ों किताबें और सैकड़ों जो है आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। तो पता नहीं आप ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ। लेकिन ऑपोजिशन में जो बरसरे इक्तदार थे उनकी ऑपोजिशन जमातों की बात कर रहा हूं। आप जमात इस्लामी की तमाम तहरीकें ले लें, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई हुई है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस पर इल्जामात लगाए थे। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं कि ऑपोजिशन ये करती रही, इस वक्त भी तो ऑपोजिशन ही कर रही है ना PTI। देखिए, ऑपोजिशन अगर करती भी रही तो अमेरिका को कोई फर्क तो उससे पड़ा नहीं, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में वापस आई थी तो अमेरिका से समझौता करके आई थी और उसके बाद उनको बहुत एक वालेहाना इस्तकबाल हुआ लाहौर में। जब उन्होंने कहा था मैं चाहती तो गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेती, लेकिन उनको जनरल ज़ियाउल हक को कहा गया कि उनको वापस आने दें। और उसको वापस आने के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो लेफ्ट का मार्क्सिस्ट से सोशलिस्ट कैडर था, जो एंटी अमेरिकन कैडर था, उसको उन्होंने पीछे कर दिया और पीपल्स पार्टी को उन्होंने रीडिफाइन कर दिया। उसके बाद जो भी इलेक्शन 2-2, 2.5, 3-3 बरस के बाद पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते रहे, जनरल ज़ियाउल हक की जो एक्सीडेंटल डेथ हुई उनकी, उसके बाद जब भी इलेक्शन, बल्कि इनफैक्ट एक इल्जाम तो ये भी बहुत बड़ा है, अगर आप उस ग्रुप से बात करेंगे जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ हैं, वो यही समझते हैं कि अमेरिका ने और CIA ने एक साजिश करके पाकिस्तान के अंदर अनासर को इस्तेमाल करके जनरल ज़ियाउल हक को मार डाला। तो उसके बाद जो हुकूमत आई वो ज़ाहिर है अमेरिका की मर्जी से आई और फिर हुकूमतें तब्दील होती रही। वो कौन सी हुकूमत थी, ऑपोजिशन थी, जिसने वक्ती तौर पर कोई नारा मारा होगा अमेरिका के खिलाफ? कोई अमेरिका के खिलाफ तो कोई मूवमेंट दिखी पाकिस्तान में। ये 70s में एक सेंटिमेंट था, अब ये एक सेंटिमेंट जो है वो इमरान खान ने पैदा किया और इमरान खान को भी इसमें से टोन डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज इस्लामाबाद में कोई हुकूमत बन नहीं सकेगी तहरीक इंसाफ की आज या कल जो अमेरिका के खिलाफ होगी। आज या कल कोई हुकूमत नहीं बन सकेगी जो अमेरिका के खिलाफ होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईर पीरजादा साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।